The Armanz Institute. Meet initial and ISSB experts. Ladies and gentlemen, this is a detailed video of Officer Personality Inventory Test, including official guidelines, brief history, examples, and also guidelines will be provided to you for this particular test. So watch the video till the end. It is the second test in psychological test known as Officer Personality Inventory, or known as commonly OPI test. This test taps your emotional and social domains. Now let's see how to attempt this one. OPI includes a series of single tests. This is a very simple test with MCQs based short statements to choose from. It only asks you about your preferences in your day-to-day routine, ranging from strongly agree to strongly disagree. Therefore, do not speculate for any right or wrong answer. You are bound to answer all the questions within the stipulated time. Your test will not be scored if you leave any question, so attempting all the question is very must. History of OPI test. So, the history of Officer Personality Inventory. और ये हिस्ट्री हम जो है यहाँ पावर पॉइंट में लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है. And also I am using Urdu language so that maximum of our ISSB aspirants can understand this topic. Gentlemen, according to our unofficial research, this OPI is derived from this Myers-Briggs type indicator, commonly known as MBTI. ये MBTI से निकला है अकॉर्डिंग टू अवर अनऑफिशियल रिसर्च. अब और MBTI की डिस्क्रिप्शन क्या है? In personality typology, the Myers-Briggs type indicator is an introspective self-report questionnaire indicating differing psychological preferences in how people perceive the world and make decisions. It enjoys popularity despite by being widely regarded as pseudoscience by scientific community. इसका मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता हूँ. ये डिस्क्रिप्शन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. ये MBTI जो है बेसिकली ये एक बंदे की पर्सनैलिटी टाइप को बता देता है थ्रू डिफरेंट क्वेश्चनियर्स, ठीक है. और ये साइकोलॉजिकल जो है इंटरप्रिटेशंस के थ्रू होता है. अब क्या होगा इसको मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ, थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको समझा देता हूँ फिर समझेंगे. हिस्ट्री में देखें, हिस्ट्री इसका क्या था, वाज कंस्ट्रक्टेड बाय टू अमेरिकन्स, ठीक है, Carthena Cook Briggs and her daughter Isabel Briggs Meyer, who were inspired by the book Psychological Type by Swiss psychiatrist Carl Jung. Isabel Myers was particularly fascinated by the concept of introversion and she typed herself as INFP. अब ये एक पर्सनैलिटी टाइप इंडिकेटर है, ठीक है. इसमें किस तरह होता है बता देता हूँ. एक बंदा एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है या सेंसिंग है या इनिशिएटिव वाला है, थिंकर है, जजर है, फीलर है, परसीवर है, ये बता देता है, ठीक है. अब मैं इसको अब एसएसबी में इसको मॉडिफाई करके जो है अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक की गई है. ये तो डेली लाइफ और जो है आप ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं उसके बारे में. अब एसएसबी में इसमें क्या है देखें. एक्सट्रोवर्ट का मतलब वो बंदा जो आउटडोर लविंग हो, जो ज़्यादा बातूनी हो. इसके बारे में मुकम्मल जो है आप कहीं भी जाके देख सकते हैं एक्सट्रोवर्ट कौन होता है, इंट्रोवर्ट कौन होता है. इंट्रोवर्ट खामोश सा लड़का, घर में बैठना, अकेले रहना, ठीक है, कम बातें करने वाला. ये सेंसर जो बंदा सेंसिंग में तेज़ होते हैं, उनकी सेंस बड़े तेज़ होते हैं. कुछ बंदे होते हैं इनिशिएटिव ले लेते हैं, ये एक आपके अफसर क्वालिटी भी है, एक अफसर की क्वालिटी, ठीक है. एक बंदा होता है फिलॉसफी वाला, थिंकर होता है, ठीक है. एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी और डिफरेंट माइंडसेट. उसके डिफरेंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और डिफरेंट वीक पॉइंट्स होंगे डिपेंडिंग ऑन हिज पर्सनैलिटी मेकअप विच ही हैज़ बिल्ट इट थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड, थ्रू हिज एजुकेशनल प्रोफिशिएंसी.
educational, life, and then after his environment, his friends, his social circles, everything, they had created this personality. अब ज्यादा वो थिंकर के साथ अगर बैठा होगा तो ऑटोमेटिकली वो भी देखिए फलसफे वाले जो ये जो है उस वक्त के थे अरस्तु वगैरह, उनके शागिर्द भी फिलॉसफी वाले होते थे। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी उनके मुताबिक बनी है। ठीक है, जजर्स, कुछ लोग बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं लोगों को जज करने के लिए। फीलर, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फीलिंग वाले होते हैं। ठीक है, दूसरों को फील करते हैं, जल्दी जल्दी बातों पे रोते हैं। वो दूर से ही मुँह के एक बंदे की एक्सप्रेशन से पहचान जाएंगे उसके बंदे उसकी उसमें क्या आ रहा है। ठीक है, अब इसको बता देता हूँ, ये थोड़ी ब्लर करके मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आपको पता होना आपके लिए अच्छा नहीं है। अब देख, यहाँ पे एक सलूट वाला बंदा खड़ा है। अब ही इज वेरी सुटेबल फॉर बीइंग ए कमांडर। अब इसका जो पर्सनैलिटी टाइप है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अब एक बंदा है, ठीक है, देखिए प्रोटैगोनिस्ट, ये मेरा पर्सनैलिटी टाइप है। ठीक है, मेरा अपना भी ENFJ, एक्सट्रोवर्जन, और ठीक है छोड़े, इसे आपको ज़रूरत का काम नहीं है। अब एक बंदा है वो बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है, एक बेहतरीन बंदा ये बन सकता है। तो ISSB में भी आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट होती है। ठीक है, पर्सनैलिटी असेसमेंट में वो देखते हैं कि ये बंदा क्या ये आर्मी के लिए फिट है या नहीं। ठीक है, वो ट्रेनेबिलिटी देखते हैं। बिल्कुल ये नहीं कि आप गूगल से कहीं लाएँ और कहे कि मेरा पर्सनैलिटी टाइप ये है तो मैं ही अफसर बनूंगा। नो, आप में सब कुछ होगा लेकिन आप में कैरेक्टर नहीं हो सकता, तब आप नॉट रिकमेंड होंगे। तब आप में इंटीग्रिटी नहीं हो सकता, दैट्स अनदर कप ऑफ टी। वो देखते हैं ट्रेनेबिलिटी वाला बंदा, पोटेंशियल, ही इज रेडी टू बी ए मिलिट्री ऑफिसर। इस सिंपल एग्जांपल में आपको एक बंदा नाथ खां है। ठीक है, अब इसका ये बताता है ये बंदा ट्रेनेबल है। ठीक है, इसमें कॉन्फिडेंस है। ठीक है, इसमें जो स्टेज फियर नहीं है, ये दूसरों को अगर इसको 10 दिन ट्रेनिंग दी जाए किसी स्पीच के लिए, ये फर स्पीच दे सकता है। तो ISSB उन पोटेंशियल्स की तलाश में है, क्या बंदे को 2 साल ट्रेनिंग देने के बाद ये एक बेहतरीन अफसर बनेगा या नहीं। वो कोई भी बन सकता है। ठीक है, सो दे नो वेल, ISSB सेलेक्टर्स नो वेल। आप MBTI को फोकस करके ये नहीं बता सकते कि मैं बंदा हूँ। नो, एक बंदे का कुछ आया था, ठीक है, बस वो चीज़ें डिस्कस, ये नहीं आया था। ठीक है, कोई दूसरा आया था उसका जब हमने पर्सनैलिटी असेसमेंट उसकी की थी, लेकिन वो रिकमेंड है 151 लॉ कोर्स में, तो ये मैटर नहीं करता। थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ। अब देख ले, वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ OPI टेस्ट। अब एग्जांपल्स आपको समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको मैं आपको बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझाऊंगा। ऐसा आपको पता है कि मैं जो है हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आई एम प्रोवाइडिंग वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म, तो ये वही चीज़ है। आई एम कॉन्फिडेंट। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, साइकोलॉजिस्ट जो एसेस करता है वो ये देखेगा कि आपने इन ऑप्शंस में से कौन सा चूज़ किया। आई एम कॉन्फिडेंट। आई एम कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि क्या आप कॉन्फिडेंट है या नहीं। इसे आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक वो करें। अगर किसी बंदे ने लिखा कि मैं स्ट्रांगली एग्री, मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं एक टिप आपको दूँ, आप अपनी कॉन्फिडेंस हर टास्क में दिखाएंगे, तब ये मैच करेगा आपके OPI रिजल्ट के साथ। ठीक है, अब एक बंदे ने लिखा आई एम कॉन्फिडेंट को स्ट्रांगली डिसएग्री, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो और OPI का रिजल्ट साइकोलॉजिस्ट के सामने पड़ा होगा, वो देखता है कि इसमें OPI का रिजल्ट वो कंप्यूटर चेक करता है। ठीक है, और कोई नहीं, कंप्यूटर ऑटोमेटिक चीज़ है, तो वहाँ पे आएगा कि लैक्स ऑफ कॉन्फिडेंस। अब आर्मी ऑफिसर अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है, देन हाउ ही कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट? द आंसर इज नो। कुछ ऐसे इनडायरेक्ट टिप्स आपको दे रहा हूँ। And then after we have I feel comfortable only at home। अब ये बंदा जो है घर वाला है। ठीक है, होम साइलेंस वाला बंदा है, चुपा खामोश बंदा है। ठीक है, साइकोलॉजी थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी है। देन आफ्टर आई एम टेलिंग, अब ये बंदा अगर से लिख दी कि स्ट्रांगली एग्री या मोस्टली एग्री, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये बंदा ये खामोशी पसंद करने वाला बंदा है, ये आउटडोर लविंग नहीं है। ये अब आर्मी की लाइफ जो है मुकम्मल आउटडोर लविंग है। ठीक है, मुकम्मल आउटडोर है। ज़्यादातर आपकी सारी एक्टिविटीज़ सब कुछ आउटडोर ही होते हैं, 70% या 90%। अब वो साइकोलॉजिस्ट के सामने आएगा, बंदा जो है ये खामोश बंदा है, ये सिर्फ घर को ही पसंद करता है, बाहर को पसंद नहीं करता, तब आपके लिए मसला होगा। थोड़ी टिप आपको दे रहा हूँ इनडायरेक्ट। ठीक है, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। बाकी
आप इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन वहाँ आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे बता दें, फिफ्थ न्यूट्रल का मतलब इसमें बता देता हूँ, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब 50% है कि मैं 50% ना इधर हूँ ना उधर के हूँ, ठीक है। स्ट्रांगली एग्री का मतलब 100%, एस का मतलब 80%। ऐसे ही आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। आई प्रेफर ग्रुप स्टडीज, हाँ मैं 60% ग्रुप स्टडीज को वो करता हूँ। स्लाइडली एग्री, हाँ मैं 80% ग्रुप स्टडीज को वो करता हूँ। मोस्टली एग्री, ठीक है। मैं स्ट्रांगली एग्री, हाँ मैं तो ग्रुप स्टडी करता हूँ मुकम्मल, ये चीज़। अब ये नीचे भी इस तरह ही होगा, 60% डिसएग्री, 80% डिसएग्री, 100% डिसएग्री। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इजी। आई प्रेफर ग्रुप स्टडी। अब आर्मी की लाइफ मुकम्मल ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप में काम करते हैं, टीम में काम करते हैं। अगर कोई बंदा ग्रुप स्टडी को प्रेफर करता है, इट मीन्स ही इज सुइटेबल फॉर द आर्म फोर्सेस। ये ऐसे टिप्स आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आई डोंट लाइक टू जॉय विद फ्रेंड्स। अब आर्मी अफसर की एक क्वालिटी होती है कि वो लाइवली होता है, लाइवलीनेस क्या आप में है या नहीं, ठीक है। सियाचिन में जब भेज देंगे तो आप बोर होके अगर खुदकुशी करने के लिए बैठेंगे थोड़ी बहुत सख्ती से, तो यू आर नॉट फिट। वहाँ पे आपको अपने जवानों को भी खुश करके रहना होगा कि आप लाइवली है या नहीं। तो ये आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक इन ऑप्शंस को चूज करेंगे। देन आफ्टर आई लाई सम टाइम, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। लेकिन एज ए नॉर्मल पर्सन मैंने देखा है कि हर कोई मजाक वगैरह में भी झूठ बोल देता है, तो ये स्लाइडली एग्री शायद हो सकता है। अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं लिख देता स्लाइडली एग्री। बट एक कैंडिडेट 151 लॉन्ग कोर्स में रिकमेंड हुआ था, उसने लिखा था स्ट्रांगली डिसएग्री। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। वो रिकमेंड हुआ था क्योंकि उसने प्रूफ भी की थी, हाँ मैं कभी भी मैं झूठ नहीं बोला हूँ, ठीक है। एक बंदा अगर लिखता है कि स्ट्रांगली डिसएग्री, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है, ठीक है। अब उसको अगर उन्होंने पकड़ लिया कि तो झूठा है थोड़ी बहुत, वो एक्सपर्ट है, ठीक है। 3 डायमेंशनल सिस्टम में आप डॉज नहीं दे सकते, इसलिए हमेशा बी ओरिजिनल, बी योरसेल्फ। उसके बाद टिप्स टू अटेम्प्ट द फॉर बेस्ट, मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगा जो आपको पाकिस्तान में कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता। बी ओरिजिनल एंड बी योरसेल्फ, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। यू मस्ट हैव टू बी ओरिजिनल, यू मस्ट हैव टू बी योरसेल्फ, तब आप नहीं फंसेंगे। उसके बाद फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। कुछ बच्चे स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करके यहाँ मार खाते हैं और नॉट रिकमेंड होते हैं, ठीक है। मतलब गलत ऑप्शन आप चूज करेंगे। अब बेशक आप पोटेंशियल कैंडिडेट होंगे, फिर भी आप स्टेटमेंट को 2 दफा पढ़ ले, क्योंकि ये थोड़ी बहुत मुश्किल होती है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी टिप है, ये आपके जहन में आने चाहिए। एक्ट एज ए नॉर्मल पर्सन, जो मैंने आपको बताया, आई लाई सम टाइम। मोस्टली बंदे इस तरह होते हैं, कभी मजाक मजाक में बोल लेते हैं, ठीक है, तो वो कह देते हैं हाँ सर स्लाइडली एग्री, हमने कभी कभी बोला है। अब एक बंदा होगा, ठीक है, मतलब उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करने के लिए मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। अब 5 दिन आप उनके साथ रहते हैं, 4-5 दिन, वो चुटकियों में पता लगा लेंगे, ठीक है। तो आप झूठे ना बने, बी ओरिजिनल, बी योरसेल्फ, बी नेचुरल। उसके बाद डोंट लीव एनी क्वेश्चन, आप किसी भी क्वेश्चन को लीव ना करें। अगर लीव करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर में जो प्रोग्राम डाले गए हैं वो मुकम्मल क्वेश्चंस को चेक करके आपकी पर्सनैलिटी के टाइप को उनके सामने रखना, ठीक है। उसके बाद वोकेबलरी एनहांसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनके नोट्स आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, मैं आपको सेंड कर दूंगा। वोकेबलरी की बहुत ज़्यादा मसला होता है, बच्चों को स्टेटमेंट की समझ नहीं आती, क्योंकि इसमें मुश्किल वोकेबलरी भी इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद न्यूट्रल कैन बी चूज इफ, अगर कोई स्टेटमेंट आपको समझ ना आए तो लीव छोड़ने के बजाय आप उसे न्यूट्रल कर दें, ठीक है। कोई स्टेटमेंट समझ नहीं आई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको आप न्यूट्रल कर सकते हैं, अगर लीव ना छोड़ें, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको सबको अटेम्प्ट करना है। न्यूट्रल का मतलब जो है ना इधर की ना उधर की, ये आपकी जो रिजल्ट में इतना ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिस्ट ऑफिशियल जो है एसएसबी के अंदर एक कैंडिडेट आके मुझे कहा था, मैंने उससे पूछा था सर के साइकोलॉजिस्ट से कि जो है ये स्टेट में मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करो, तो उसने कहा था कि आप जो है लीव छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देख लें, फॉर पाकिस्तान बेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में नो कोचिंग, नो ट्रेनिंग, कुछ भी नहीं।
ओनली द राइट गाइडलाइंस। मैं आपको रिकमेंडेशंस, इतने रिकमेंडेशंस दिखा सकता हूँ कि आई एम चैलेंजिंग टू यू इन होल पाकिस्तान वी हैव द हाईएस्ट रिकमेंडेशन। वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, मैं आपसे जो है आपको प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। अब आपको डिटेल एक्सप्लेन लेक्चर्स मिलेंगे हर टास्क के लिए, हर टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, और पाकिस्तान के बेस्ट लेक्चर्स आपको मैं डेमो भी 40-50 मिनट का लेक्चर फ्री भेज दूंगा। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले और फिर देखे कि हाँ ये बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान बेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म या सही है या नहीं। उसके बाद ऑनलाइन लाइव क्लासेस गूगल मीट पे आप लोगों के होंगे, ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग एंड ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस होंगे, आपके साथ फ्रेंड्स होंगे, लाइव इंटरव्यू प्रैक्टिस आपकी होगी, ऑथेंटिक स्टडी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद यू कैन इंटरेक्ट विद रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, 1-2 लो मेरिट कैंडिडेट्स है रिकमेंडेड। उसके बाद 3 अभी जो है नेवी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, 8-9 को है, तो उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, मैं उनके नंबर भी आपको दूंगा। उसके बाद इंडिविजुअल अटेंशन, हर किसी को मैं इंडिविजुअली उसकी इंप्रूवमेंट कराता हूँ, ठीक है। अब मैं ये मसला है बेटा, आप ये करें, आप वो करें, 24 घंटे अवेलेबल रखे एंड विद लेस देन अ बुक फीस, एक किताब से भी कम फीस में। और ये फीस भी आपको एक ही दफ़ा पे करना होगा टिल योर सेटिस्फैक्टरी प्रिपरेशन, टिल योर ISSB, नो मंथली चार्जेस और नथिंग। सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। So at last, be a good son, be a good human, love your country, love your armed forces. Pakistan Zindabad, Pakistan.